हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सप्लेन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रेडिकल पॉलीमराइजेशन। यानी जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन हमारा होता है, जो 3 स्टेप्स मेनली होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशंस में। तो जो ये थर्मोडायनेमिकली बेस्ड होता है, इसका थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, किस तरह से ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है मेज़र की जाती है, कैसे मोनोमर की मेज़र की जाती है, कैसे ये एक मोनोमर दूसरे से ऐड होते हैं, तो फिर पॉलीमर की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैसे जो है मेज़र की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू सी दैट overall activation energy of polymerization that is given by a formula En equal to half of Ed and Ep minus 1 by 2 Et. So Ed is equal to 125 minus 125 से 170 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड here Ep minus half Et is equal to ये नियर अबाउट 20 to 30 किलो जूल पर मोल एनर्जी। दस इनिशिएशन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। पॉलीमराइजेशन रेट is equivalent to experiments E upon RT. This is the minus E upon RT. This is the activation energy. Thus it will be increased as the temperature is raised. As the temperature is raised, here you can see that one type of monomer, that is free radical, which is added to one another and there is formation of dimer. In this case, delta Gp is equal to delta Hp minus T delta Sp. Delta Sp, this is related with the enthalpy of the product, S entropy of the product, G gives energy of the product. So delta Sp is less than 0, pi bond is equal to sigma bond. Delta Sp is less than 0, this is loss of transition in entropy. Polymerization favored below a ceiling temperature Tc. Tc is equal to delta H upon delta S. Delta H ये enthalpy heat of formation और delta S entropy है. So now what happened? In this case, delta G is equal to delta H minus T delta S, that is less than 0. Delta G will increases if T is raised. Increasing the temperature of delta G eventually becomes 0 and the polymerization stops. This occurs because the loss in entropy arising from joining many molecules into one star to outweigh the energetic benefit of converting double bonds to single bonds. Temperature above which a monomer cannot be converted long chain polymer is known as the sealing temperature, जिसको हम TC से कहते हैं, सीलिंग टेम्परेचर कहा जाता है इसे। और इसे रिप्रेजेंट करने का एक फार्मूला है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई RMN रेडिकल प्लस M इज इक्वल टू, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, Kp अपान KdP RmN1 प्लस 1 रेडिकल। Rp इज इक्वल टू Kp M रेडिकल कंसंट्रेशन ऑफ M रेडिकल M। यहाँ पे जो है एक तरह से इसकी काइनेटिक्स निकाली गई है और ये इक्विवेलेंट टू 0 के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द वैल्यू जब कांस्टेंट हो जा रही है और K इक्वल टू Kp अपान KdP इक्वल टू 1 अपान MC के कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल हो रहा है, तो देन डेल्टा G इक्वल टू माइनस RTC ln K log K इक्वल टू RTC और ln M इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. So here you see that overall what happened actually, Tc is equal to delta H upon delta S plus R ln M concentration of Mv. तो ये Tc हमारा जो होता है वो जिसे सीलिंग टेम्परेचर्स कहते हैं, ये इसके वेरिएशंस के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से हम उसका थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी इनकी थर्मोडायनेमिक्स नोन कर सकते हैं। सेकेंड वन है हमारा कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन में जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक एमोन रेडिकल है, एमोन एटम से इंटरेक्ट हो रहा है और यहाँ बना रहा है M1 रेडिकल, फिर M2 से M2 रेडिकल,
M2 रेडिकल M1 से M1 रेडिकल, M2 रेडिकल M2 से M2 रेडिकल and so on. Here you see that, and here is the K11, K12, K121, K22, that is the rate constant, and here is it represented by R1 equal to K11 by K2, R2 is equal to K22 by K21. So if we study about the fraction of monomer in reaction mixture, F1 equal to concentration of M1 upon concentration of M1 plus concentration of M2 is denoted, then the fraction of monomer I built into polymer F1 is equal to d M1 upon d M1 concentration of M1 plus d concentration of M2. So the F1 equal to R1 F1 square plus F1 F2 upon R1 F1 square plus 2 F1 F2 plus R2 F2 square. So here you see that the average copolymerization rates, that is the given by Kp is equal to R1 F1 square plus 2 F1 F2 plus R2 F2 square upon R1 F1 upon K11 plus R2 F2 upon K22. These values are given. If these values are given, you can calculate very easily the Kp, long chain assumptions. So reactivity ratios is dependent of environmental factors. Here some graphs are represented in which there is the changes between F1 changes and has been seen, and there is the composition drift are shown by this blue and red lines. What does composition drift mean for the polymer that is formed? What the composition drift, इसका मतलब क्या होता है? इसका मेन मतलब ये होता है कि this is one of the temperature dependent, how many kilojoule energy is required are released after the formation of this polymer. So there are different type of polymerization techniques, or we can say that there are different features of polymerization techniques. Sometimes for one monomer several techniques of polymerizing are available. Choice of specific techniques depends on number of factors. यानी जो डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं और वो जो पॉलीमर्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं, तो वहाँ पे उस टेक्निक के थ्रू उनकी जो थर्मोडाइनमिकल, एक तरह से उनकी जो थर्मोडाइनमिक्स होती है वो डिफरेंट तरीके से मेज़र की जाती है, लेकिन जो एक्चुअल मेज़रमेंट होता है वो नियर अबाउट, चाहे कोई भी टेक्निक अप्लाई करें, वो नियर अबाउट इक्विवेलेंट इक्वल आता है. सो द मेन techniques are kinetic, mechanistic factors related to chain length, chain composition. Technological factor, heat removal, reaction rate, viscosity of the reaction mixture, morphology of the product, this is technological factor. Economical factors होता है कुछ economic factors जिसको production cost, environmental aspects, purification steps, etc. etc. And here some techniques are available for homogeneous systems. This is bulk polymerization and solution polymerization. Heterogeneous systems के लिए होता है suspension polymerization, emulsion polymerization, precipitation polymerization, polymerization in solid state, polymerization in the gas phase. So here you can see that a systematic representation, bulk polymerization. There are advantages and disadvantages as represented here. For bulk polymerization, simple, only the monomer and initiator are present in the reaction mixture, and then there is formation of high molecular weight. But the disadvantage of this bulk polymerization is that exotherm of the reaction might be hard to control, molecular weights very disperse. ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि जो मॉलिकुलर वेट होता है वो एक तरह से देखा जाए तो रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. पॉलीमर इज सॉल्युबल इन द मोनोमर, विस्कोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज मार्केडली, एंड आल्सो द पॉलीमर इज नॉट सॉल्युबल इन द मोनोमर. पॉलीमर प्रेसिपिटेट आउट विदाउट इंक्रीजिंग सॉल्यूशन विस्कोसिटी. यहाँ दो चीज़ें दिखाई गई हैं.
दो रेशियो से। एक में है कि पॉलीमर जो है वो इज सॉल्युबल इन द मोनोमर, और जिससे विस्कोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हैं, और ये एरो जो शो कर रहा है यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से जो है विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि विदाउट इंक्रीजिंग इन सॉल्यूशन विस्कोसिटी पॉलीमर इज नॉट सॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड। So here the polymerization process, suspension polymerization, here you see that जैसे सस्पेंडेड कुछ मोनोमर्स ले लिए जाएँ, बीट्स ऑफ मोनोमर्स किसी कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें कुछ वाटर मिक्सअप कर दिए जाए, और फिर स्टीरिंग की जाए, रैपिड स्टीरिंग की जाए, और रैपिड स्टीरिंग्स के बाद देखा जाए कि दोनों जो है आपस में आप देख सकते हैं एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। तो बोथ द मोनोमर एंड द इनिशिएटर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जब ये इनसॉल्युबल होते हैं तो यहाँ पे रैपिड स्टीरिंग करनी होती है। आफ्टर दैट देयर इज द मर्जिंग टेक्स प्लेस। सो टिपिकल बेस साइज 5 माइक्रॉन्स, स्टीरिंग नेसेसरी टू प्रिवेंट एग्रीगेशंस। तो इस तरह से देखा जाए कि सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड विद द पॉलीमराइजेशन। Water insoluble monomers are dispersed in water, initiated dissolve in monomer. Stabilization of droplet polymer particles with non-micelle forming emulsifier like polyvinyl alcohol or sodium carboxymethyl cellulose. Equivalent to bulk polymerizations, small droplet dispersed in water, product can easily be separated particle. This is the 0.01 to 1 mm near about. Pore sizes can be controlled by adding combination of solvent, swelling agent and non-solvent. Viscosity does not change much. So next one is the advantages and disadvantages. Heat control, simple product, directly usable, easy handling. तीन चीज़ें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। हीट कंट्रोल है, प्रोडक्ट डायरेक्टली यूजेबल होता है, और ईजी हैंडलिंग होती है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, जो कंटामिनेशन विद स्टेबलाइजिंग एजेंट, कोआगुलेशन पॉसिबल, यानी कोआगुलेशन भी हो सकता है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है कि आयन एक्सचेंज, रेजिन, पॉलीस्टाइरीन, फोम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सब में जो है ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है। यहाँ इस तरह से कुछ इमल्सन पॉलीमराइजेशंस दिखाए गए हैं। इमल्सन जैसे भी पानी में तेल डाल दीजिए और उनको मिक्स करिए, तो मिक्सिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरह से जो इनिशिएटर और जो मोनोमर है एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ जो है इस तरह से मिक्सिंग प्रोसेस दिखाए गए हैं जिसमें वो मिसेल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, मिसेल फॉर्मेशन। सो मिसेल फॉर्मेशन इज टाइप ऑफ आल्सो ए पॉलीमर. So what is the main property, or we can say that what is the main feature of the emulsion polymerization? This one is the micelle forming emulsifier is used. Initiator is water soluble. Suspension में initiator water soluble नहीं होता. The formed latex particles are much smaller than suspension particles. ये 0.05 से 2 माइक्रोन मिली माइक्रोन के बीच में होता है लगभग. Kinetics differ considerably from other techniques. Polymer is found within the micelle and not in the monomer droplets. Micelle में फॉर्मेशन होता है, ड्रॉपलेट में नहीं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लो विस्कोसिटी इवन एट हाई सॉलिड कंटेंट्स, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ रेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट एप्लीकेशन, कंप्लीट रिएक्टर कंटेंट्स. और इसका डिसएडवांटेजेस है कि कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ एडिटिव, more complicated in case of water soluble monomer. So here we see that the overview of ionic polymerization selectivity. The ionic polymerizations are more selective than radical polymerization or radical process due to strict requirements for stabilization of ionic propagating species such as cationic. लिमिटेड टू मोनोमर्स विथ इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप्स. जैसे यहाँ पे आरओ है, ये फिनाइल ग्रुप है, बिनाइल ग्रुप है, और ये सब्स्टिट्यूटेड बिनाइल ग्रुप है, एंड सो ऑन. ये सब जो कैटानिक फॉर्म में आते हैं.
एनायनिक में जो होता है हमारा लिमिटेड टू मोनोमर्स विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे CN है, नाइट्राइल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी फिनाइल ग्रुप आता है। सो a quaternion is present in both anionic and cationic polymerizations। और ये जो quaternions है yielding ion pair not free ions, इसमें फ्री आयन जैसे कैटानिक है C प्लस X माइनस, एनानिक है C माइनस M प्लस, तो एक में कार्बन प्लस होता है, एक में कार्बन माइनस होता है। देयर विल बी सिमिलर इफेक्ट ऑफ quaternion एंड सॉल्वेंट ऑन द रेट stereochemistry and copolymerization for both cationic and anionic polymerization। Formation of relatively stable ion is necessary in order to have reasonable lifetimes for propagation। This is accomplished by using low temperature to suppress termination and transfer, and mildly polar solvents such as pentane, methyl chloride, ethylene dichloride are used। So here you see that the ion pair, binding in ion pair in polymerization, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक जो है आयनिक बॉन्ड होता है जैसे B प्लस A माइनस। देर आर 4 स्टेजेस ऑफ आयन पेयर बॉन्डिंग, BA, B प्लस A माइनस, B प्लस A माइनस सॉल्वेंट सेपरेटेड लूज आयन पेयर। यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया, डबल पैरेलल, 2 पैरेलल लाइन दिखाई गई है। इसमें क्या है, फ्री आयन यहाँ B प्लस प्लस A रेडिकल के फॉर्म में है, वेरी रिएक्टिव बट लो कंसंट्रेशन। तो इस तरह से एक आयन पेयर क्रिएट होता है और आफ्टर दैट देयर इज द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। मोस्ट आयनिक पॉलीमराइजेशन हैव इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन पेयर सेकेंड और थर्ड डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट एंड फ्री आयंस रिस्पेक्टिवली। सो जो मैकेनिस्टिक एनालिसिस है आयनिक चेन पॉलीमराइजेशंस की, तो इसमें जो अभी आपने देखा कि इसमें 4 तरह के जो आयन पेयर फॉर्मेशन होते हैं, और ये जो चारों आयन पेयर होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड जो था वो एक दूसरे से कॉपी जो है इसी फॉर्म में जो पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट हमारा बनता है, यानी जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है लगभग इसी फ्लो में वो जो है क्रिएट होता है। सो reactions are fast but are extremely sensitive to small amount of impurities। Highly polar solvents will react with and destroy or inactivate the initiator। ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं, ये फॉलो करना चाहिए। एक तरह से कहा जाए कुछ प्रिकॉशंस हैं, इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। मोर एवर हेटरोजीनियस इनिशिएटर्स आर यूज्ड मेकिंग द नेचर ऑफ द रिएक्शन मीडियम unclear and determination of the mechanism difficult। Termination by neutralization of the carbocation, carbonium ion, carbenium ion occurs by several processes for cationic polymerization, but termination is absent for anionic polymerization। So here you see that initiation of cationic chain polymerization, जैसे यहाँ दिया है HBr और HI। जैसे यहाँ पे देखिए एक आइसोब्यूटाइलिन दिया गया है, और आइसोब्यूटाइलिन में होता क्या है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड जो है ये हमारा सिंपली ब्रेक होता है, और H जो है वो हाइड्रोजन CH2 से जुड़ जाता है, CH3 बना लेता है। यानी यहाँ देख सकते हैं 3 एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 टेकन थ्राइस C प्लस, और वहाँ पे A रेडिकल इससे आकर के जुड़ जाता है। इस तरह ये प्रोटोनिक एसिड्स हैं, ये इस तरह से इनिशिएट होते हैं। लीविस एसिड जो होते हैं जैसे LCl3, BF3, SnCl4, इनका जो को इनिशिएटर्स होता है वाटर के साथ इज नीडेड टू एक्टिवेट द, कैसे BF3 H2O के साथ BF3OH2 फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं BF3OH H2O जब ये प्रोपिलीन से आइसोप्रोपिलीन जो है से इंटरैक्ट करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 टेकन ट्वाइस CBF3OH और रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है।
So the cationic chain propagation monomer structures. Substituents must be able to stabilize a formal positive charge. For olefins, tertiary, secondary, primary due to inductive effect by styrenic monomers. Here you see that the monomers are equal to Cl are equal to H, CH3 और CH3. इसके लिए जो है कुछ आयनिक चार्जेस की वैल्यूज़ जो है वो शो की गई है. सो द कैटानिक इनिशिएटर्स यू हैव सीन प्रोटॉन एसिड विथ अनरिएक्टिव कंटिन्यूस, जैसे ये सब दिए गए हैं आपके पेरोक्साइड के फॉर्म में, टेट्राऑक्साइड्स के फॉर्म में, परक्लोरिक एसिड्स के फॉर्म में, H2SO4 के फॉर्म में, ये हमारे इनिशिएटर्स होते हैं. और लीविस एसिड और अदर रिएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं प्रोटोनेशन और कैटायनजेनिक जो होते हैं, जैसे BF3H2O के साथ मिक्सअप करता है और किस तरह से टाइटेनियम क्लोराइड एल्कीन के साथ मिक्स करके जो है ये फॉर्मेशन करता है. सो हियर यू सी दैट द कॉमन स्टेप्स ऑफ कैटानिक पॉलीमराइजेशन, कि किस तरह से कैटानिक पॉलीमराइजेशन हमारा जो है वो इनिशिएट होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल कैटायन दिया गया है जो इस एल्कीन ग्रुप पर अटैक करता है और यहाँ फॉर्मेशन कर देता है कार्बोकैटायन का, और पुनः फिर एल्कीन से रिएक्शन होता है, फिर कार्बोकैटायन एंड सो ऑन, और इस तरह से पॉलीमर का फॉर्मेशन होते चला जाता है. आर मस्ट बी स्टेबलाइज एडजेसेंट कैटायन, आर जो है एडजेसेंट कैटायन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है. जैसे बिनाइल ईथर में होता क्या है कि बिनाइल ईथर में सिंपली जो CH2CO CH3H है तो C+ कार्बोकैटायन है, फिर इसमें दूसरा जुड़ जाता है NH1, यहाँ ऑक्सीजन जो है आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कार्बोकैटायन में ऑक्सीजनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. स्टायरीन के केस में देख सकते हैं कि स्टायरीन बेंजीन न्यूक्लियस से CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH जुड़ा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड टूटा, तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव हुआ, और ये जब फिर मूवमेंट होता है रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, और ये कार्बोकैटायन कहाँ चला आता है बेंजीन न्यूक्लियस पे. तो इसका मतलब यहाँ 2 साइटेड जो है अवेलेबल हो जाती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ टू क्रिएट द पॉलीमेरिक रिएक्शंस. तो एक आप बेंजीन न्यूक्लियस के साथ देख सकते हैं और एक जो है यहाँ देख सकते हैं. तो ये 2 सेंटर्स अवेलेबल, 2 अदर रेजोनेटिंग आइसोमर्स ये फॉर्म कर सकता है. तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटर विच आर यूज. लीविस एसिड्स फॉर्म एक्टिव कैटलिस्ट को कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्सेस विथ प्रोटॉन डोनर्स. बहुत सारे जो कैटलिस्ट होते हैं जिसमें लीविस एसिड कैटलिस्ट भी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पॉलीमेरिक रिएक्शंस क्रिएट कराने के लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AlCl3, तो यहाँ एल्यूमिनियम का जो है ऑर्बिटल बना गया, एम्प्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है कि एल्यूमिनियम के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट कर देता है, और इस तरह से यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है. आफ्टर दैट ये इनिशिएटर हो जाता है. कब जैसे ही हम प्रोपिलीन से ये रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड H पे गया, तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, और इस तरह से कार्बोकैटायन का टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहाँ आप देखिए इनिशिएटर बन गया आपका C+, और ये बन गया आपका रेडिकल. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल. तो इस तरह से बहुत सारे हमारे लीविस एसिड. और नेक्स्ट वन इज़ द जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चेन पॉलीमराइजेशन का, कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जाए तो ये टोटली रीजियोकेमिस्ट्री या प्रोपगेशंस होती है. प्रोपगेशंस की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो रीजियो सेलेक्टिव होती है, रीजियो सेलेक्टिव. सो यानी ये मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग होता है. रीजियो सेलेक्टिव का मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, आर वी कंसिडर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, बट वन इज इन मेजर फॉर्म, अदर इन द माइनर फॉर्म. तो एक डोमिनेंट होता है तो एक रिसेसिव हो जाता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में यहाँ डबल बॉन्ड एल्कीन का जो है
ये E प्लस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करा गया है, तो यहाँ इस तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल है ये दोनों कार्बन से जुड़ सकता है, R से भी जुड़ सकता है, और जैसे यहाँ पे देखें जाए तो इस वाले कार्बन पर भी जुड़ सकता है, इस वाले कार्बन पर भी जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जुड़ा हुआ है ये जो है फेवरेबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं फेवरेबल है, यानी यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए कि यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और एल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो प्लस आई इफेक्ट के नाते ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मिनिमाइज हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ जुड़ेगा ही नहीं। तो यही रीज़न होता है कि ये कहाँ जुड़ता है, ये इस कार्बन पर यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो मार्कोनिकॉव हमेशा जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट देता है, यानी पे वहीं पे एडिशन होता है जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर स्टेबलाइजेज ए कैटायन एंड इफेक्ट regiochemistry by directing the incoming group electrophile to an opposite side to the donating group. So R is equal to alkyl, aryl, halide या अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जहाँ R जुड़ा है इस साइड से हमारे कई इफेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, फिर रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, या फिर हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट हो सकता है, सो ऑन। Now here you see that the common steps of cationic polymerization chain transfers to monomer। किस तरह से एक चेन जो है मोनोमर को ट्रांसफरिंग करता है। ये सब बहुत ही यूनिक टाइप के पॉलीमराइजेशंस हैं जो चेन और के थ्रू क्रिएट होते हैं। ये कैटानिक और एनायनिक दोनों के केसेस में होता है। So the cationic vinyl polymerization can be stopped also by numerous side reactions, most of which lead to chain transfer. It is difficult to achieve high molecular weight because each initiator can give rise to many separate chains. Because of chain transfer, these side reactions can be minimized but not eliminated by running the reaction at low temperature। इसमें होता क्या है कि जो चेन हमारी बनी रहती है, जैसे जो कार्बन चेन फार्म होती है, एक तरह से कहा जाए कुछ इस तरह, जैसे ये जो कार्बन चेन बनती चली जाती है, यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज है इनका जो एक तरह से स्टेबलाइजेशन है कि ये बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ये टेकअप कर लेता है और इस तरह से एल्कीन बना के स्टेबलाइज हो जाता है। या दूसरा होता है कि ये इसकी जो दूसरे साइड से दूसरा जो रेडिकल इसके साथ चेन का जो रेडिकल होता है उसके साथ, जैसे ये CH2 है, ये प्लस है यहाँ, तो ये इसके हाइड्रोजन को यहाँ से लेके इसको और ये CH3 बना लेता है। ये एल्कीन और ये एल्कीन एक तरह से कहा जाए तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बनाया गया लिया चेन, यहाँ पे ये कार्बन चेन है इस तरह, और ये कार्बन चेन आप देख सकते हैं कि ये अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पर, और ये बॉन्ड यहाँ आया फर्दर, यहाँ स्टेबलाइजेशन हो गया। आप देखिए यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और ये एल्कीन और नेक्स्ट वन जो है ये कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी स्टेबलाइज होकर एल्कीन बना लेता है। तो इस तरह से जो है चेन हमारी जो टर्मिनेट। दूसरा आप देख सकते हैं किस तरह से ये पॉलीमेरिक चेन जो ये बैक बीटिंग से अटैक कर रही है, तो इस तरह से जब यहाँ अटैक होता है तो इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जो कि इस रिएक्शंस में दिखाया गया है। हियर यू सी दैट हाइड्राइड ट्रांसफ़र। आप हाइड्राइड ट्रांसफ़र में आप देख सकते हैं जैसे दो, एक इनिशिएटर है और एक आपका मोनोमर है, और जनरली जो इनिशिएटर होता है वो प्रोपागेटिव चेन के रूप में फॉर्म होता है, तो वो हाइड्रोजन को यहाँ से वो एलिमिनेट करके इसको कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से एक चेन ब्रेक हो जाती है, दूसरी फॉर्म, फिर दूसरा, तीसरा, और इस तरह से ये फर्दर क्रिएट करते चला जाता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द जनरल काइनेटिक स्कीम फॉर द कैटानिक पॉलीमराइजेशन। हियर वी हैव टू सी दैट कि ये एक दिखाया गया है कि किस तरह से इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन ये जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ I प्लस ये जो ऊपर हमने बताया था जो चेन बनाई गई है आयनिक मोनोमर्स की, जैसे I प्लस A माइनस है प्लस M से हुआ, तो I
M प्लस A माइनस हो गया, तो यहाँ पर एक इनिशिएट हो गया, और M1 प्लस A माइनस प्लस M से रिएक्शन करके M2 प्लस और A माइनस बना लेता है, और इसी तरह से ये बढ़ते चला जाता है। फाइनली टर्मिनेशन कराने के लिए IMN प्लस A माइनस जो है IMN प्लस H प्लस A माइनस का फॉर्मेशन, यानी वही हाइड्रोजन जो है, जो ऊपर आपने देखा हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस तरह से चेन हमारी टर्मिनेट हो जाती है। So the general kinetic scheme for cationic polymerization, this is the continuations. This involve the steady state approximation. This is not much more important for this level. This is based on the PhD level, so I will not discuss about this. Now come on the common steps of anionic polymerization. The common steps are, once again here you see that this is very common steps that is shown here, कि आपका इनिशिएटर होता है, मालिक मोनोमर पे अटैक करता है, कार्बोकेटायन बनता है, हाइड्राइड आयन लेता है, और इस तरह से पॉलीमराइजेशन चेन बनती चली जाती है, दिस वन। सो ऑल दीज आर द, we can say that the chain polymerization especially, and how the chain polymerization takes place through radical polymerization and cationic and anionic polymerizations and so on. तो यहाँ पर जिस तरह से आपने कैटानिक इनिशिएटर्स देखा, तो उसी तरह से ये एनानिक इनिशिएटर्स भी, ये जो है ये रेट ऑफ किस तरह से ये भाग लेते हैं और किस तरह से ये जो है मेनली पॉलीमर फॉर्मेशंस करते हैं। तो फॉर इनिशिएशंस टू बी सक्सेसफुल द फ्री एनर्जी ऑफ द इनिशिएशन स्टेप मस्ट बी फेवरेबल, देयरफॉर it is necessary to match the monomer with the appropriate strength of initiator so that the first addition is downhill. If the propagating anion is not very strongly stabilized, a powerful nucleophile is required as initiator. On the other hand, if the propagating anion is strongly stabilized, a rather weak nucleophile will be successful as initiator. Of course, more powerful ones would be true in the latter case. Here you see that जो यहाँ पे हमारे इनिशिएटर्स दिए गए हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग एनानिक फॉर्म, इसके पहले आपने कार्बन कैटानिक फॉर्म देखा, अब यहाँ आप कार्बन एनानिक फॉर्म, जैसे आप यहाँ प्रोपेन एनायन 1 2 3 4 सॉरी ब्यूटेन एनायन, ये एरिन एनायन, तो इस तरह। बट जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं, अगर ये अब जुड़े हुए होते हैं एनानिक के साथ, सो दे आल्सो अफेक्टिंग द स्टेबलाइजिंग दिस ग्रुप, एंड देन आइदर दिस इज द वाटर कैन आल्सो इनिशिएट साइनोएक्राइलेट सुपर ग्लू, जिसे फॉर्मेशन कहते हैं, वीक बेसिस सच एज दोज ऑन द प्रोटीन स्किन वर्क इवन बेटर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो इनिशिएटर्स होता है हमारा, वो एक बेस होना चाहिए कि तभी ना एनायन में कन्वर्ट होगा। जो हमारी मोनोमर चेन होगी वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, तभी ना कार्बन वहाँ, जैसे अगर हम इसको दिखाना चाहें कुछ इस तरह से, जैसे सपोज करिए यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ हमारा बेस यहाँ अटैक करेगा, तभी ना यहाँ कार्बन एनायनिक इनिशिएटर का फॉर्मेशन होगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इनिशिएटर है वो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस केसेस में ये जो C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, CH2 यहाँ का, ये CN से जुड़ा है और C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, ये कार्बन। तो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, आप देख सकते हैं जब ये पोलराइज होगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चला जाएगा, कार्बन तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा तभी नहीं यहाँ पे अटैक करेगा। तो कुछ इस तरह के हमारे बेस होते हैं जो इनिशिएट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए द कॉमन स्टेप्स ऑफ एनानिक पॉलीमराइजेशन चेन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कॉमन स्टेप्स है। जो जैसे आपने कैटायन में देखा हाइड्राइड आयन अटैक कर रहा था,
अब यहाँ पर सेम उसका रिवर्स है कि यहाँ पे कार्बन नेगेटिव जो है ये हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और इस तरह से जो है चेन को डेड कर दिया जाता है या टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो प्रोपागेटिंग चेन होती है हमारी वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लाइटली एसिडिक पार्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मूव होना ये एसिडिक नेचर को शो करता है। तो द न्यू एनायन दस क्रिएटेड कैन इनिशिएट लीडिंग टू ब्रॉन्ज पॉलीमर। तो इस तरह से होता क्या है कि इस केसेस में आप देखिए ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ से कार्बन ले लेता तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाता, तो ये आपका स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ न्यू एनायन फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यू एनायन फिर से प्रोपागेट होता है और इस तरह से फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन इनिशिएट मतलब टेकअप करेगा और इस तरह से एक ब्रांचिंग क्रिएट कर देता है उस पॉलीमर में। तो जो एनायनिक के थ्रू ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन थोड़ा सा फास्ट होता है। सेकंड देखिए यहाँ टर्मिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे एल्कोहलिक ग्रुप हुआ या वाटर हुआ जो वीक होते हैं, यहाँ से ये कार्बन आयन हाइड्रोजन को टेकअप करके ये जो है रिएक्शन को टर्मिनेट कर देता है। तो व्हेन कैरीड आउट अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन टर्मिनेशन रिएक्शन डू नॉट अकर इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन, it is very difficult to terminate the chain, so the new anionic species is too weak to initiate। तो इसमें होता क्या है कि जब दूसरे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ चेन टर्मिनेट हो गई तो जो नया ग्रुप बना एनायनिक, ये जो ग्रुप बन जाता है ये इसकी तुलना में, इस एनायन की तुलना में ये री इनिशिएट नहीं होती, ये नया फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकती है। तो इसी तरह से बहुत ही जिसे कहें कि हाईली ब्रॉन्ज पॉलीमर का फॉर्मेशन इसमें जो है नहीं हो पाता है। ये इसका मेन फंक्शंस है। कुछ आप देख सकते हैं फंक्शनलाइजेशन ऑफ द चेन इन एनायनिक पॉलीमराइजेशन। कुछ फंक्शंस यहाँ दिखाए गए हैं जैसे कि एनायन कार्बोक्सिलेशन इन ग्रुप। तो यहाँ कार्बन आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड से पे जो है इन ग्रुप का रिएक्शंस कराया जाता है। जैसे ये एनायन है हमारा और ये जब C डबल बॉन्ड O से अटैक करेगा तो ये आयन यहाँ आएगा, ये ग्रुप बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ बना लेता है COO-। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये दूसरे वाले से हाइड्रोजन टेकअप कर लेता है और COS बना लेता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एल्कोहल इन ग्रुप्स वाया इथिलीन ऑक्साइड, एल्कोहल इन ग्रुप्स एथिलीन ऑक्साइड से एल्कोहल इन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से बहुत ऐसे कॉपलिंग एजेंट्स होते हैं जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ सिलिकॉन टेट्रा एक तरह से 4 मॉर्म स्टार पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, सिलिकॉन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो लिविंग एनायनिक पॉलीमराइजेशंस में देखा जाए तो कुछ इसके सब्सटेंसेस हैं, चेन आर इनिशिएटेड ऑल एट वंस, little or no termination, little or no depolymerization, all chains grow under identical condition. The result is the monomer get divided evenly among chains. For monofunctional initiator, the chain length is simply x is equal to monomer divided oblique initiators. For difunctional initiators, electron transfer the chain length is twice as large. तो मोनोमेरिक के लिए जो है इनिशिएटर्स होता है और डाई फंक्शनल के इनिशिएटर्स के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। एनायनिक इनिशिएटर्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीटा हमारा जो है, जो सिंपल रिएक्शंस ऊपर हमने दिखाया वही हमने बताया, वही सेम यहाँ पर बी स्पेशली एज ए बेस। तो ये बेस क्या करेगा हमारा, ये बेस जो है ये प्रोटॉन यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉन देता है, ये बॉन्ड चलाता है फर्दर। इस तरह कुछ होता है रिएक्शन इसमें। बेस यहाँ कार्बन पर आ और ये बॉन्ड यहाँ चलाया तो यहाँ आप देख सकते हैं एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बेस डिपेंड्स अपॉन मोनोमर रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे कुछ आप सब्स्टिट्यूएंट की जो है एबिलिटी देख सकते हैं कि किस तरह से वो स्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। तो यहाँ NO2 सबसे ज़्यादा है, फिर सी कार्बोनिल है, सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्राइल है, सल्फा ऑक्साइड है,
फिनाइल है, फिर बिनाइल है, और फिर इसके बाद मिथाइल यानी एल्काइल ग्रुप है। और जो हमारे बेस इनिशिएटर्स होते हैं, मेन टाइप्स इसमें ऑफन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है, या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज एन एल्कली मेटल अल्कोक्साइड्स होते हैं। पोटेशियम विथ लिक्विड अमोनिया, स्टेबल अल्कली मेटल कॉम्प्लेक्सेस में बी फॉर्म विथ एरोमेटिक कंपाउंड्स इन ईथर, सोडियम मेटल इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये सारे हमारे इतने जो कंपाउंड्स होते हैं ये बेस इनिशिएटर का काम करते हैं, और यही जो है जो चेन होती है वहाँ से ये हाइड्रोजन को टेकअप करते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को उनको डोनेट करते हैं। दोनों तरीके से ये जो है कार्बन आयन का फॉर्मेशन करते हैं।